welcome to the NDTV Auto Show. Aston Martin has launched its Vanquish. Let us take you on a quick walk around. Now, Aston Martin and James Bond, well, there are a lot of tales about this combination, but today we are not talking about that because we have the all-new Vanquish, which is launched in India at a price tag of Rs 8.85 crores ex-showroom. Getting straight off to the styling, you get the very iconic Aston Martin grille onto the front. It is larger now. Well, also this splitter, it is finished in carbon fiber. This bonnet that you see, it is also carved out of carbon fiber, and the whole body shell, it looks exciting. These are forged alloy wheels and they measure 21 inches, and the great part is they have diamond cut finish to them, so they look exciting if nothing. Now you must have seen doors that are like Caesar doors, they open upwards, but these one, they open in a slightly diagonal fashion because these are swan wing doors and they are designed in such a manner so that you avoid hitting a curb while opening these doors. Yes, the new Vanquish replaces the DBS Superleggera and it is now 80mm longer than the model it replaces, and all of those 80mm are shot between the wheelbase and largely towards the front section of the car, and that's why you have a very long bonnet housing a V12 engine. This Grand Tourer silhouette that you see over here is alluring. It is seductive no matter what. But with this ducktail spoiler, the rear is an all-new theme right now. It gets a lot of carbon fiber over here. The splitter, it is carbon fiber. The side skirts that you see, those are carbon fiber as well. And Aston Martin has done that to keep the weight down. But what's there on the inside? Let's get to know that now. So what I've always loved about Aston Martins is they are fast cars. Well, they are GT and some are sports car from their lineup. But the interior has always been a very luxury car like, and it is the same case over here in the Vanquish. So it is fully leather wrapped and there are a lot of panels which are carved straight out of carbon fiber. But when we have to talk of tech, well, there's a 10.25-inch instrument cluster and a 10.25-inch infotainment unit. It is paired to a 15-speaker Bose & Wilkins sound system. Also, the steering wheel, it comes with pedal shifters which are not metal, so they look a little cheap on a sub 9 crore rupee car, but other buttons and all, they feel very familiar. Now, talking of the center console, it looks very sporty. There are these carbon fiber flanks over here. Along with that, this car also has a sense of practicality because what you're getting here are two cup holders and some storage space and a wireless charger underneath this armrest. Also, the glove box is pretty large, I would say, but these seats, they are supportive and they feel premium and sporty at the same time. Now you must be wondering, why is everybody so excited to have a look at this engine? Well, it's an all-new 5.2 litre V12 engine, and earlier it used to be a naturally aspirated motor, but now it gets twin turbo charger. Well, talking of power output, it puts out 835 horses against 1000 Newton meters, and that gives you a push to 100 kmph from a standstill in just 3.3 seconds. Top speed, that is 345 kilometers to an hour. So now let's also talk about what sends the power to the rear wheels of this car. Well, it's an 8-speed ZF automatic gearbox and it does its job quite well, at least on the paper. You know what, with that bigger powerhouse you also need big brakes. That's why you have over 400mm of dia for this front rotors, and carbon ceramic brakes come as standard. And for handling, what you're getting is adaptive suspension, and you also have a locking rear differential which takes less than a second for go from 0 to 100% full lock. Well, ladies and gentlemen, that was all about the newly launched Aston Martin Vanquish. Yes, it replaces the DBS Superleggera but goes against the likes of the top tier Ferraris and the Lamborghinis. देर आए दुरुस्त आए, इस पुरानी कहावत को कारगर करती दिखाई पड़ रही है होंडा की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। उनमें से एक मेरे साथ शामिल है आज QC1, जिसे मैं बैंगलोर में चला रहा हूं, करने वाला हूं रेंज टेस्ट। तो इसे बाजार में उतारा गया है 90,000 रुपए एक शोरूम की कीमत में, जहां पे दिया गया है एक 1.5 किलोवाट आवर का फिक्स बैटरी जो इको मोड में प्रदान करता है
80 किलोमीटर तक का रेंज। लेकिन हम आज इसे चलाएंगे स्टैंडर्ड मोड में, जहां पे स्पीड लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आप छू सकते हैं। चेक करेंगे कि रेंज कितना निकल के आता है। चलिए रेंज से शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए पैरामीटर्स, ये 5 इंच के LCD डिस्प्ले में काफ़ी बेसिक सा डिस्प्ले है। यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। 99% बैटरी बाकी है, ट्रिप मीटर दिख जा रहा है, यहाँ पे बीचों बीच स्पीडोमीटर भी दिया गया। और जब आप मोड चेंज करते हैं इको स्टैंडर्ड, आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ वो है कहीं भी रेंज नहीं दिखा रहा, कितना रेंज बाकी है। ये शायद एक फीचर है, कंपनी ज़रूर कंसिडर कर सकती थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप ए जो है ऑलमोस्ट 0 पे है, 0.1। चलिए शुरू करते हैं रेंज टेस्ट की। बैंगलोर की सड़कों पे मैंने आज चलाया QC1 और अब समय है आपके साथ साझा करने का कि मेरा अनुभव कैसा रहा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कह दूं कि जो इसमें जो मोटर दिया गया है ये काफ़ी हम्बल मोटर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। 1.8 किलोवाट का पीक पावर वाला मोटर दिया गया है और ये आपको एक सुलझी हुई परफॉर्मेंस देता दिखाई पड़ेगा। मतलब हम अक्सर ही जो देखते हैं थ्रॉटल घुमाते ही इलेक्ट्रिक व्हीकल तुरंत भागना शुरू करती है, वैसा नहीं है। काफ़ी ग्रेजुअल इसका पिकअप है। जितना ही मैंने चलाया इको मोड में लगभग 30 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, और वहीं स्टैंडर्ड मोड में जाते हैं तो फ्लाईओवर जब चढ़ाई हो रही है तो लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और उतरने के वक्त लगभग 55 किलोमीटर की स्पीड ये स्कूटर पकड़ सकती है। स्वीट स्पॉट कहीं भी 40 से 45 के बीच आप मान के चल सकते हैं। जो राइड क्वालिटी है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सपल है, मतलब थोड़ी सॉफ्ट रखी गई है स्प्रिंग्स की क्वालिटी। मतलब जब आप खड्डों के ऊपर से निकलते हैं काफ़ी आराम से निकल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट्स या बैक पे फील नहीं होगा। वारंटी की बात करें तो कंपनी 5 साल एक्सटेंडेड वारंटी के तहत आपको ये स्कूटर प्रदान करेगी। आप एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद सकते हैं। साथ ही साथ रोड साइड असिस्टेंस भी आप एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल का पैकेज खरीद सकते हैं। अब कर लेते हैं रेंज की बात। बैंगलोर ट्रैफिक में क्रूज करना नामुमकिन है। कॉन्स्टेंट स्टॉप एंड गो मतलब लोड बैटरी पे बरकरार था। ब्रेकिंग के वक्त आई वाज एक्सपेक्टिंग रीजनरेशन जो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऑन एन एवरेज बैटरी ड्रेन की बात करते हैं तो आई वाज डूइंग 10 किलोमीटर्स इन 18% बैटरी। लगभग 2 घंटे QC1 चलाया मैंने एंड इट फेल्ट निम्बल। 20% से नीचे आते ही QC1 वेंट इनटू टर्टल मोड, जहां स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लिमिट हो गई। आई स्टिल केप्ट राइडिंग इट अंटिल आई रीच द होटल। ट्रिप फिनिश हुई 49 किलोमीटर्स पे एंड आई हैड 13% लेफ्ट। You tell me, is this enough for you? देखिए ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा तो बाइटिंग पावर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओनली 90 किलोज वेट और काफ़ी मैनेजेबल स्कूटर है, उस हिसाब से 40-45 की स्पीड पे ये ब्रेक्स काफ़ी कारगर साबित होते हैं। चलिए अब फीचर्स की ओर एक बार नज़र दौड़ाते हैं। कहते हैं ना सिंपल चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, वैसा ही आपको फील होगा इस QC1 के साथ। डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा और सिंपल रखा गया है। एक्टिवा के लाइंस में आपको यहाँ पे डिज़ाइन क्यूज दिख जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक है तो कुछ चेंजेस ज़रूर यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। आकार के साथ शुरू करते हैं। फ्रंट में 12 इंच के व्हील्स, पीछे 10 इंच के व्हील दिए गए हैं। QC1 वेरिएंट में ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे स्कूटर का जो वजन है वो मात्र 90 किलो का रखा गया है। सीट हाइट की जब बात करते हैं 769 मिलीमीटर्स, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मैं काफ़ी अपराइट रिलैक्स पोजीशन पे यहाँ बैठता हूँ। बहुत चौड़े हैंडल बार्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये फैमिली को सूट करेगी। डिफरेंट फैमिली मेंबर्स काफ़ी आराम से इसे चला सकते हैं। टोटल 5 कलर ऑप्शन में इसे उतारा गया है। फ्रंट में LED लाइट का इस्तेमाल हो रहा है। सीट काफ़ी लंबा है और सीट के नीचे जो स्टोरेज दिया गया है वो अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ पे आप एक हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं, फिर भी आपको कुछ और जगह यहाँ पे बच जाएगी। पीछे की ओर जो ट्विन कॉइल दिया गया है यहाँ पे आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा सा यहाँ पे टच दिखाई पड़ रहा है। जो मोड्स का बटन दिया गया है इको और स्टैंडर्ड, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज के साथ यहाँ भी एक पॉकेट दिया गया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर बॉटल या फिर छोटे मोटे सामान यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक हुक भी दिया गया है और चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे दिया गया है और इसे चार्ज करने में लगभग 5 घंटे का वक्त लगता है। जो की है इसका वो काफ़ी सिंपल सा की दिया गया है और यहीं से आपको मिल जाएगा सीट ओपन करने का की। कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल है जो मुझे पसंद नहीं आ रही, जैसे कि इस मीटर में ना परसेंटेज में तो दिखा देगा कितना बैटरी बाकी है, स्टेट ऑफ चार्ज कितना बाकी है, लेकिन रेंज की बात कहीं नहीं हो रही कि
मान लीजिए 80% में ये 40 किलोमीटर चलेगी। ये किलोमीटर वाला डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला रीड आउट कहीं नहीं दिया गया है। साथ ही में मुझे लगता है एक रिवर्स मोड दिया जाता तो अच्छा होता। अक्सर ही हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में देखते हैं पार्किंग से निकालना ईजी हो जाता है रिवर्स मोड के वजह से। हाउएवर नॉट अ बिग मिस, लेकिन कंपनी कंसिडर कर सकती थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब कोई भी ऐप वाली पेयरिंग नहीं मिल रही। देखिए नेविगेशन या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स तो छोड़िए, वो पैसों की बात है, लेकिन एज बेसिक एज अगर आपके व्हीकल में कुछ ख़राब होता है तो आप डायग्नाइज नहीं कर सकते घर बैठे। यू हैव टू हेड टू द डीलरशिप और द सर्विस स्टेशन जो आपको बताएंगे अगर कुछ ऊपर नीचे होता है आपके QC1 के साथ। तो आई थिंक दिस इज़ अ स्लाइट मिस। मुझे लगता है ये काफ़ी प्रैक्टिकल सुझाव है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लिए। बड़े शहरों में शायद उतनी कारगर साबित ना हो, लेकिन पहली झलक में मुझे ये स्कूटर पसंद आ रही है। दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म। होंडा की ओर से एक्टिवा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में आ चुकी है। 1,17,000 रुपए एक शोरूम कीमत, रेंज 102 किलोमीटर, और ये टारगेट की जा रही है यंग टेक गीक लोगों को। चलिए आज पता लगाते हैं रियल लाइफ में कितना रेंज देती है एक्टिवा इलेक्ट्रिक। काफी लंबा दिन रहा मेरा बैंगलोर में विथ एक्टिवा ई, और मैं यही कहना चाहूंगा कि इट डिलीवर्स ऑन द प्रॉमिस। एक्टिवा बैज जो लगा है इस स्कूटर के साथ उस पर खरी उतरती है। कुछ वजह देखिए, जो परफॉर्मेंस है काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। अगर आपको तेज़ तर्रार चलाना है यू कैन स्विच टू स्पोर्ट मोड, और वहाँ पे आपको ब्रिस्क एक्सेलरेशन मिलेगा। आप शहरी ट्रैफिक में काफ़ी इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। इसमें दिया गया है एक 6 किलोवाट का मोटर जो एक PMSM मोटर है जो स्विंग आर्म पे यहाँ पे प्लेस किया गया है, गिव्स डिसेंट परफॉर्मेंस। अब देखिए सारे मोड्स में टॉप स्पीड लगभग सेम है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू सकती है ये स्कूटर, लेकिन जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है। मुझे मज़ा आया जब मैंने इसे स्टैंडर्ड मोड में मोस्टली चलाया आज पूरे दिन रेंज टेस्ट की वजह से, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ओवरटेक करने में। और मुझे लगता है आप किस भी तरह के राइडर हो, मतलब लंबे हो, चौड़े हो, छोटे हो, बौने हो या फिर नौसिखिया हो, जो परफॉर्मेंस ये स्कूटर प्रदान कर रही है आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वाइट मैनेजेबल इन दैट सेंस। एजिलिटी भी सही है, ट्रैफिक के बीच से काट के निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। 12 इंच के जो व्हील्स दिए गए हैं दीज आर डिसेंट इन टर्म्स ऑफ निम्बलनेस, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है इस फ्रंट डिस्क और पीछे ड्रम सेटअप की, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लगभग 60-65 में भी अगर मैंने स्लैम किए ब्रेक्स डिड नॉट स्किड। हालांकि नॉट द आइडियल कंडीशन टुडे, मुझे लगता है ये अभी भी नए कंडीशन में है तो पहले राइड में ही ये नहीं पता चलेगा, लेकिन आई थिंक द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज par फॉर द कोर्स। बैंगलोर ट्रैफिक वॉज एट पीक एंड आई होप सही कंडीशंस भी था रेंज टेस्ट करने के लिए। आई वॉज राइडिंग इन स्टैंडर्ड मोड जहां स्पीड 30 से 60 के बीच थी। रेंज की बात करूं तो 12 से 14% चार्ज में 10 किलोमीटर कवर कर रही थी एक्टिवा ई। थ्रू आउट मुझे काफ़ी निम्बल लगी स्कूटर और ओवरटेक करना भी था आसान। हालांकि रीजन सेटिंग्स आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक बहुत ही बड़ा मिस है। 50% चार्ज खत्म होते होते आई कुड कवर 37 किलोमीटर्स, और चार्जिंग स्टेशंस भी काफ़ी लिमिटेड सिटीज़ में है। तो आप अगर बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली से नहीं हैं तो एक्टिवा ई खरीदने का सोचिए भी मत। मैं एक्टिवा ई चलाता रहा अंटिल चार्ज ड्रॉप टू 15%, जब टर्टल मोड एक्टिवेट हो गया एंड द स्पीड वाज कैप टू 30 किलोमीटर्स एन आवर। दिन के अंत तक आई ऑलमोस्ट डिड 61 किलोमीटर्स एंड बैटरी लेफ्ट वाज 12%। ऑन पेपर 1,17,000 रुपए एक शोरूम एक्टिवा ई की कीमत कंपैरिजन में ये सारे कंपटीशन से महंगी है। अगर बजाज चेतक की ओर देखिए 3201 वेरिएंट जो आता है वो लगभग 10,000 रुपये महंगी है। वहीं रिस्टा Z या फिर TVS iQube S वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो वो इससे लगभग 25 से 30,000 रुपये महंगी है। लेकिन यहाँ पे एक राज छुपा है, वो है सब्सक्रिप्शन। क्योंकि आप इसके बैटरी को खरीद नहीं रहे बल्कि इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ले रहे हैं, मतलब बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वैपिंग स्टेशन जाइए, पुरानी बैटरी जो डिस्चार्ज बैटरी है उसे चार्जिंग सॉकेट पे लगाइए और फ्रेश बैटरी आप अपने स्कूटर में डाल दीजिए। अब इसके लिए मिनिमम आपको 2,000 रुपये का शुल्क भरना पड़ेगा एज ए सब्सक्रिप्शन एवरी मंथ फॉर 1000 किलोमीटर्स के रनिंग के लिए। अब आप 1000 किलोमीटर चलाइए या फिर नहीं तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए मान लीजिए आपने 1000 किलोमीटर चलाया, तो अगर हम किसी भी दूसरे स्कूटर से कंपेयर करें तो लागत लग जाएगा
फॉर एवरी चार्ज 30 से 40 रुपए, और वही पूरे महीने में आपको खर्च होगा लगभग 400 से 500 रुपए। तो यहाँ पे आपको एक 1,500 रुपए का डिफरेंस दिख जाएगा हर महीने, जो ट्रांसलेट होता है ओवरऑल साल में 18 से 20,000 रुपए का डिफरेंस दिखेगा। वहीं 5 साल में आपको 1 लाख रुपए तक का डिफरेंस दिख जाएगा अगर हम कंपेयर करें बैटरी स्वैपिंग वर्सेस जो स्कूटर्स को घर पे चार्ज किया जाता है। लेकिन यही होंडा का दावा है, क्योंकि बैटरी आप ओन नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्टिवा पे रीसेल वैल्यू बेटर मिलेगी अगर हम तुलना करें किसी भी कंपटीशन से। मतलब हम अक्सर ही देखते हैं, हम लंबे अरसे तक कोई फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी हेल्थ गिर जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी की हेल्थ गिरती दिखाई पड़ती है। तो आपको रिप्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी एक्टिवा ई के साथ। आप मुझे बताइए व्हाट मेक्स बेटर सेंस फॉर यू। 5 साल बाद आप इसी एक्टिवा के लिए लगभग 2,40,000 से 2,50,000 रुपए खर्च कर चुके होंगे। वहीं किसी भी कंपटीशन से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए के साथ 50,000 रुपए की चार्जिंग, आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, उसके बाद शायद आपको चेंज करना पड़े या फिर नहीं, तब की बात है। सो दिस इज़ अ प्राइस डिफरेंशियल जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर आप इसकी तरफ रुझान बना रहे हैं। फैमिली को अच्छी खासी अपील करेगी। सीट हाइट की बात करें तो 769 मिलीमीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 169 मिलीमीटर्स का मिल जाएगा। फ्रंट और रियर 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, और अब तो एक्टिवा ई में फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिलेगा जो आपको QC1 में नहीं मिलता है। अब इसमें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बैटरी पैक्स है वो सीट के नीचे दिए गए हैं, कंप्लीटली स्वैप आउट होते हैं, तो चार्जिंग का झंझट है नहीं। लेकिन इन बैटरीज के चलते आपको बूट स्पेस भी नहीं मिलेगा। एक 7 इंच का कलर TFT स्क्रीन आपको मिल जाएगा, और एक जॉयस्टिक की मदद से आप फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो आपको कुछ कनेक्टेड फीचर्स कंपनी प्रदान करेगी, जहाँ पे जियो फेंसिंग, नेविगेशन, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि जो इंफोटेनमेंट है काफ़ी क्रिस्प है, टच रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। ऑल LED सेटअप का इस्तेमाल कर रही है कंपनी। स्मार्ट की भी मिलेगा, मतलब जेब में रहेगी चाबी, आप आराम से नॉब घुमाइए एंड यू आर गुड टू गो। कहीं कहीं लग रहा है कि कंपनी और थोड़ा प्रीमियम इसे बना सकती थी, जैसे कि ये ग्रैब रेल या फिर जो इसको मिरर्स दिए गए हैं ये थोड़े से हल्के फुल्के लग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे फीचर्स ठीक ठाक लग रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट में एक्टिवा ई को उतारा गया है। राइड काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। जो दिक्कत मुझे लग रही है वो बैटरी एज अ सर्विस, ये कैसे लोग एब्जॉर्ब करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, इस नए कॉन्सेप्ट को कैसे लोग अपने लाइफ में लेते हैं, अपनाते हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। What I like about Scramblers is the fact that they're lean, mean and versatile. They can be the only motorcycle in a garage and do almost anything that you would want a motorcycle to do. And yes, it has been a while in coming, but we finally had the chance to ride the Royal Enfield Bear 650 based on the Interceptor 650, of course. So what is the Bear 650 all about? Well, it is what Royal Enfield calls a street scrambler. Yes, it is primarily meant to be ridden on city roads, but it will indulge you if you want to hit the trails on the weekend. A butch rugged appeal, an imposing stance, a 2-in-1 exhaust, increased suspension travel and dual purpose tire make it significantly different than the Interceptor 650. What I quite like is the way the motorcycle looks. The retro scrambler flavor is apparent with the lean mean stance of the motorcycle, with chunky tires, block pattern treads, ribbed seat and the classic round headlight. Putting aside function for a minute, the form on the Bear 650 is definitely a head turner. While it may not have the visual mass of a Super Meteor 650 or the Shotgun 650, in my opinion, it is easily the best looking motorcycle from RE's 650cc range. In terms of features, the Bear 650 gets the same circular TFT console which we have seen on the Himalayan and the Guerrilla 450 with Google Maps integration. You can turn off the rear ABS for some off-road fun, and the Bear is also the first 650cc RE to get full LED lighting. So the Bear 650 weighs in at 216 kg. It has a seat height of 830 millimeters and ground clearance of 184 mm. So if you want to pick it off the side stand, it takes significant effort, right? And if you go to sit on the motorcycle,
I'm 5 feet 8, but I can firmly plant my foot on the ground, right? The seating position is more or less upright with a slight hint of sportiness, so you tilt slightly forward when you're riding, and the foot peg position is neutral as well. The seat itself is nice and comfortable, unlike the one on the Interceptor. So the overall ergonomics is fine, but if you're shorter than 5 feet 8 inches, then you will have to get used to the weight and the tall seat height of the motorcycle. The Bear 650 continues to get the same 648cc air and oil-cooled parallel twin engine, making 46.8 horsepower at 7150 rpm, while the peak torque output is 56.5 Newton meters, coming in at 5150 rpm. Now, the torque output is around 4.5 Newton meters more than what the other 650cc RE models offer, and the increase in torque is felt across the rev range. The engine is paired to a 6-speed gearbox with a slip and assist clutch. So the improvement in performance is more than just incremental. Thanks to the 2-in-1 exhaust, there's an increased sense of urgency in the way the power builds up on the motorcycle. The acceleration is quite brisk and overtaking is a very breezy and fun affair. There's more than enough power and torque on tap in the mid-range and at the top end too. The engine feels refined and the 6-speed gearbox is nice and smooth and offers smooth gear shifts. But if you want to shift between first and second gear and find the neutral, at times that action is not so smooth. The Bear 650 also gets some reinforcement on the chassis at the headstock and the subframe, which makes it tougher than the other RE 650 models. Also, the swing arm on the Bear 650 is 60 mm longer than that of the Interceptor 650, making it a bigger motorcycle. The front suspension consists of a 43 mm Showa USD fork with 130 mm of travel, while the rear gets twin shock absorbers with 115 mm of travel. You do feel the heft and the weight of the motorcycle when you're filtering through traffic and when you want to make quick direction changes. But when you're leaned over a corner, the motorcycle feels sure-footed and feels very stable. And the grip from the MRF Nylorex tires is quite good indeed, despite the fact that they're dual sport. But where the motorcycle feels short is the fact that it has a very stiff suspension and a very bouncy ride quality, despite the fact that there's an increase in suspension travel. Particularly, the rear suspension feels very stiff, and if you go over broken patches of road, you will feel the jolts in your spine, and that is not very confident inspiring. Prices for the Bear 650 start at 3,39,000 rupees, going up to 3,59,000 rupees depending on the color option that you choose. The motorcycle doesn't have a direct rival, but in case you want a scrambler that is more affordable and offers more or less similar performance, then you can look at the Royal Enfield Scram 440 and the Triumph Scrambler 400X. So the answer to the big question, is the Bear 650 the best motorcycle that you can buy in Royal Enfield's 650cc portfolio? In my mind, the answer is yes, but that's also because I kind of prefer adventure and scrambler motorcycles. If your preferred flavor of motorcycles is different, then the Super Meteor or the Interceptor or even the Shotgun makes good sense. But if you consider the overall package, the looks, the features and the performance and the pricing as well, then the Bear 650 offers you the best value for money proposition amongst all of Royal Enfield's 650cc motorcycles. So how did you like the show today? You can give us your feedback on our YouTube channel NDTV Auto. You can also join us on your favorite social media platform. We give out a lot of auto related content. See you next week. Till then, drive safe, take care, bye bye.